The cavalcade of the Prime Minister there in these live pictures pulling up at the Rashtrapati Bhavan. The Prime Minister will be the second last to arrive. After him, there will be the Vice President and the President who will, of course, arrive for the swearing-in ceremony. This is the Prime Minister's VIP convoy making its way up the side road from Raisina Hill to the VIP entrance of the Rashtrapati Bhavan. The Prime Minister will alight shortly. We're going to stay with these live pictures on your screen, viewer, as the Prime Minister arrives. Okay, Poulomi is live with us. Poulomi, the contours of Modi 3.0 Sarkar have been revealed as we get these live pictures of the Prime Minister's arrival. 72 ministers to be inducted today, sworn in today, Poulomi. 11 NDA ally ministers, 30 cabinet ministers. The full details are out now. That's right, 72 Prime Minister Narendra Modi right now alighting Shiv from his cavalcade. Modi starts here. Several of the guests have stood up in this moment to catch a glimpse of the Prime Minister. The phone cameras are up. They're taking videos of the Prime Minister as Narendra Modi takes at the venue of the official swearing-in ceremony for the NDA government. Prime Minister, they're walking up on the dais right now, acknowledging, of course, the gathering here at Rashtrapati Bhavan. We see, of course, the Council of Ministers, which will be sworn in alongside Prime Minister Narendra Modi. The pecking order is seems by the seating in itself, Shiv, that it has changed in terms of who's more senior to who. And I'm not talking about the ranks or, whether it's cabinet or MOS independent charge or MOS. The seating in itself, JP Nadda. Stay with me for a moment. Stay with me for a moment. The Prime Minister there greeting the entire crowd as he gets up on the dais. The Prime Minister dressed in his blue Modi jacket, bowing down. Very, very symbolic, viewer. Very, very symbolic as the Prime Minister bows down to the entire crowd. It's something he's done before as well. The Prime Minister now greeting the senior council as he takes his seat with the other senior ministers there. He's seated right next to Rajnath Singh and Amit Shah. Prime Minister is all smiles. You can see his tan as he awaits the swearing-in ceremony. This is Modi 3.0, the beginning of the swearing-in ceremony of the next government of India. और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहां आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं। Ceremony will take place very shortly. Just as a reminder to all of our viewers that India Today has reported to you first the broad contours of what we're going to see play out right now in just a short while. 72 ministers will be sworn in by the President. These are the first ministers of the Modi 3.0 Sarkar. 11 of them will be from the NDA allies, 61 from the BJP. Let's listen into some of the commentary coming in. जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और Dhankar and wife have just entered. They'll be followed by President Draupadi Murmu. She will, of course, be the last to arrive as the guest, the person who presides over the swearing-in ceremony at the Rashtrapati Bhavan. करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए श्री राजेश वर्मा। कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा।
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में आंखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज आपकी आंतरिक शक्ति का भी द्योतक होता है। इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि हम देख भी सकते हैं। आज देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण, जब नई सरकार का गठन हो रहा है और कुछ ही देर में जब यहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार इस समय चर्चा उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ, एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षण जो विजयी होने का सुख भी देते हैं, आनंद भी, और साथ ही साथ कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जनप्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें, और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं, महीनों का ही नहीं, बल्कि कुछ वर्षों का रोड मैप मोदी जी ने तैयार कर रखा है। लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बढ़ती हुई और सबकी निगाहें इस समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों की ओर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो रहा है। ब्यूगलर्स के इस फैनफेयर ध्वनि के साथ उनका शुभागमन होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो
समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।